Good morning, dear students. As you know, we have started chapter second, writing and city life. We will take some more topics of this chapter. We have seen that city life has begun in Mesopotamia. Mesopotamia is the land between two rivers, Euphrates and Tigris River, that is now part of Republic of Iran. Mesopotamian civilization is known for its prosperity, city life, its origins, and its literature, and its mathematics and astronomy. All this we have seen so far. Then the second topic which we have seen was the Mesopotamia and its geography. What is the geographical features of Mesopotamia? As we see on the north there is a steppe grassland, northeast there is a mountain covered trees with mountain cover, and in south there is a desert of Arabia. In that desert the city life has started. Why? Because the Euphrates and Tigris river which enters in this desert divided into so many small channels. These channels work as a natural canals for the people of Mesopotamian civilization. Also, by these rivers, so many silt has been deposited at these particular places in south. So the soil is fertile. Enough amount of water for irrigation is available. That's why the first city life has been started in this part of Mesopotamian civilization. Ur, Uruk, Babylon and Marin. These are the major four cities of this civilization. The first person who has established their kingdom in this particular area are Sumerians, then Akkadians replaced Sumerians. After that, when the Babylonia became a major city, this civilization is known as Babylonia. And when around 1100 BC, when Assyrians has established their kingdom in north, Assyria is the new name given to this civilization. Now, the second topic which we have discussed is the significance of urbanism. Significance of urbanism means this cities and towns just mean that it has a large population. क्या cities और towns का सिर्फ यही मतलब होता है क्या कि वहाँ पे large amount of population reside करती है? No. The place which has and developed economy other than food products. A place which has a developed economy in spheres other than food production, that it became an advantage for people to cluster in town is known as a particular place as cities and towns. मीन्स cities and towns का मीन्स क्या? कोई ऐसी जगह जहाँ पे इकोनॉमी जो है वो स्पेयर में डेवलप होती है. इकोनॉमी जो है वो स्पेयर में डेवलप होने का मीन्स है कि लोग जो है वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो मीन्स अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए उन्हें किसी दूसरे पर डिपेंडेंट ना होना हो. सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी अदर देन फूड प्रोडक्शन, फूड के अलावा जो बाकी की सारी रिक्वायरमेंट है वो भी जिन जगहों पे फुलफिल होना शुरू हो जाए उन प्लेसेस को हम कहते हैं सिटीज़ और टाउन्स. और वो जो है क्लस्टरिंग टाउन्स के रूप में जो डेवलप होते हैं. अर्बन जो इकोनॉमी है इसके अंदर देखिए कौन सी चीज़ें शामिल थी. तो इसके अंदर फूड प्रोडक्शन, ट्रेड, मैन्युफैक्चर एंड सर्विसेज, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अर्बन इकोनॉमी में शामिल थी. सिटी पीपल दस सीज टू बी सेल्फ सफिशिएंट एंड डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ अदर पीपल. तो जो सिटी पीपल जो हैं वो सेल्फ सफिशिएंट थे, यानी अपनी ज़रूरतों के लिए जो है वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट थे या सर्विसेज के लिए चाहे सिटी या विलेजेस में, लेकिन उनके पास में सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होते थे. देयर इज कंटिन्यूस इंटरेक्शन अमंग देम. फॉर इंस्टांस द कार्वर ऑफ ए स्टोन सील रिक्वायर ब्राउन रूल्स दैट ही हिमसेल्फ कैन नॉट मीट एंड कलर स्टोन फॉर द सील दैट ही डज नॉट नो वेयर टू गेट. देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हम बात करेंगे कि कैसे लोग जो हैं एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट थे. तो उसके एग्जाम्पल में हम देखें कि जैसे एग्जाम्पल या एक सील मेकर का जो सील है उसको कार्व करने वाला, उसके ऊपर पैटर्न बनाने वाला या राइटिंग लिखने वाला जो है उस पर्सन को उसके ऊपर कुछ भी कार्व करने के लिए ब्रॉन्ज टूल की रिक्वायरमेंट होगी जो कि वो खुद नहीं बना सकता है, उसको कहीं ना कहीं से लेके आना होगा. साथ ही जिस स्टोन पर वो सील बना रहा है वो कलर्ड स्टोन भी उसके पास में अवेलेबल नहीं होगा, वो स्टोन भी उसे कहीं ना कहीं से गैदर करना होगा. तो इस तरीके से कि भाई वो स्टोन टूल के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, जो ब्रॉन्ज मेटल्स हैं या टूल्स हैं उसके लिए वो किसी और पर डिपेंडेंट है. ये सारी चीज़ें जो हैं ये शो करती है कि कैसे एक अर्बन लाइफ जो है उसमें डिवीज़न था लेबर का, कैसे लोग जो है वो आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हुआ करते थे. आगे हम बात करें इसके अंदर टुडे देयर मस्ट बी सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस. वहाँ पे जो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी जरूर रहा होगा जिससे कि सिविलाइजेशन जो है ये स्मूथली वर्क करता है. टू शो दैट कि सिविलाइजेशन जो है वो इनफ इजी वे में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए देखिए हम आगे बात करें. द वर्का है जो कि स्कल्पचर है जो हमें मिला है इस सिविलाइजेशन के एक पर्टिकुलर प्लेस से.
द वुमेन्स हेड वाज स्कल्प्टेड इन वाइट मार्बल एट उरुक बिफोर 3000 BC। देखिए बाहर का हेड क्या चीज़ है, एक वुमेन्स का हेड जिसको स्कल्प्ट किया गया है, यानी एक वुमेन जो है उसके फेस की जो है मूर्ति बनाई गई है कब अराउंड 3000 BC। कहाँ पे, उरुक। द वुमेन्स हेड वाज स्कल्प्टेड इन वाइट मार्बल एट उरुक बिफोर 3000 BC। अब ये जो है फेस ये वाइट मार्बल का है। द आईज एंड आईब्रोज वुड प्रोबेबली हैव बीन टेकन लैपिस लाजुली एंड शेड। जो आईज है देखिए, उन आईज के लिए इन्होंने कौन सी चीज़ को यूज किया हुआ, लैपिस लाजुली। अब लैपिस लाजुली जो है वो हम इजीली जानते हैं इस चीज़ को कि लैपिस लाजुली जो है ये एक ब्लू स्टोन है जो कहाँ पे मिलता है, अफगानिस्तान में। याद रखिएगा इस चीज़ को, लैपिस लाजुली जो है ये कहाँ पे मिलता है, अफगानिस्तान के अंदर। मीन्स एक सिटी जो इराक के अंदर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन डेवलप होता है उसकी एक सिटी उरुक, वहाँ पे एक स्कल्पचर मिलता है वुमेन का। उसकी जो आइस है, आइस के लिए जिस स्टोन को यूज़ किया गया होगा वो स्टोन कहाँ से मिलता है, अफगानिस्तान में मिलता है। वो स्टोन उसका रिसोर्स कहाँ से, मीन्स उसको अफगानिस्तान से यहाँ तक उरुक सिटी तक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन तक लाने के लिए कोई ना कोई सिस्टम जो है वो वर्क किया होगा। उसी सिस्टम के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिटी सिस्टम, सिटी कॉन्सेप्ट, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज इकोनॉमी जिसके अंदर की ट्रेड जो है वो इनलैंड और आउटवर्ड दोनों जगह हो रहा था। डिस्टेंट लैंड्स के साथ भी ट्रेड हो रहा था और साथ ही साथ में इनलैंड ट्रेड भी हो रहा था। ये सारी चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाती है। उसके साथ देखिए जो शेल है वाइट है एंड बिटुमिन ब्लैक इनलेस, और साथ में जो है ब्लैक जो बिटुमिन है वो इसकी इनलेस के लिए जो है वो यूज किया जाता है। देयर इज अ ग्रूव अलॉन्ग द टॉप ऑफ द हेड। जो हेड है उसके अंदर एक ग्रूव है, आप देख सकते हैं इमेज में। देखिए ये जो हिस्सा है ये है ग्रूव, ये बना हुआ है यहाँ पे। देयर इज अ ग्रूव अलॉन्ग द टॉप ऑफ द हेड परहैप्स फॉर एन ऑर्नामेंट। एक ऑर्नामेंट के लिए जैसे हम बात करें तो वो कोई क्राउन, जो क्राउन है उसके लिए ये ऑर्नामेंट है यहाँ पे बना हुआ है। दिस इज वर्ल्ड फेमस पीस ऑफ स्कल्पचर एडमायर्ड फॉर द डेलिकेट मॉडलिंग ऑफ द वुमेन्स माउथ, चिन एंड चिक। ये जो है एक वर्ल्ड फेमस पीस है स्कल्पचर का जो बनाया गया है वाइट मार्बल के ऊपर। इसको एडमायर किया जाता है इसकी डेलिकेट मॉडलिंग के लिए। जो वुमेन का जो फेस, उसके जो फेस के जो फीचर्स है जैसे उसका माउथ, चिन, चिक, इनको बहुत अच्छे तरीके से जो है ड्रॉ किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से जो है स्कल्प्ट किया गया है। एंड इट वाज मॉडल्ड इन अ हार्ड स्टोन दैट वुड हैव बीन इंपोर्टेड फ्रॉम डिस्टेंस। और इसको किसके ऊपर बनाया गया है, हार्ड स्टोन वाइट मार्बल पे। क्योंकि हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि जो इराक है प्रेजेंट डे का या उस वक्त का मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, वहाँ पे साउथ में डेजर्ट था, अरेबियन डेजर्ट, नो चांस टू फाइंड एनी वाइट मार्बल। नॉर्थ में जो है स्टेपी ग्रासलैंड थे, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है माउंटेन कवर्स थे, ट्री जो है वो माउंटेन कवर्स होते। तो मीन्स देखा जाए तो यहाँ पे ये जो बात कर रहे हैं हम, लैपिस लाजुली है या सेल है, बिटुमिन है, वाइट मार्बल, ये सारे डिस्टेंस से इंपोर्ट किए गए होंगे और इनकी वजह से जो है हम ये जान पाते हैं कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा था जिसके अंदर लोग जो है वो सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड कर रहे थे। आगे हम इसमें बात करें मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज, यानी हम जो बात कर रहे हैं कि कैसे जो गुड्स हैं, सामान है, उनका मूवमेंट होता है सिटीज़ के अंदर। उसकी बात करें तो हाउएवर रिच द फूड रिसोर्सेज ऑफ मेसोपोटामिया, जो फूड रिसोर्सेज है मेसोपोटामिया के, चाहे कितने भी रिच हो, क्योंकि हमने जैसे बात की कि मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है इसके अंदर एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी प्रॉस्परस था। एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी प्रॉस्परस था, सेल्फ सफिशिएंट थी इनके पास में प्रोडक्शन एग्रीकल्चर से रिलेटेड। लेकिन अगर देखा जाए तो मिनरल रिसोर्सेज इनके पास में बहुत लिमिटेड थी। दे हैव वेरी फ्यू मिनरल रिसोर्सेज। मोस्ट पार्ट ऑफ द साउथ लैक स्टोन फॉर टूल, सील एंड डेजर्ट्स। क्योंकि हम साउथ की बात करते हैं तो वहाँ डेजर्ट है, तो वहाँ पे ना तो टूल्स अवेलेबल थे, ना सील्स अवेलेबल थे और ना ही ज्वेल्स अवेलेबल थे। ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। द वुड ऑफ द इराकी डेड पाम एंड पॉपुलर वॉज नॉट गुड इनफ फॉर क्राफ्ट। और वहीं देखिए वुड की बात करें हम तो वुड में इनके पास में जो इराकी डेड पाम की या पॉपुलर की जो वुड थी वो उतनी यूज़फुल नहीं थी क्राव करने के लिए। एंड पॉपुलर वॉज नॉट इनफ फॉर क्राफ्ट, कार्ड व्हील्स, इनको बनाने के लिए जो है ये बिल्कुल भी इनफ नहीं था। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी जो सामान है वो सामान सिटीज़ में जो है वो किस तरीके से मूव किए होंगे, किस तरीके से जो है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुँचे होंगे, उसकी हम बात करें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, मेसोपोटामिया जो है फूड रिसोर्सेज का काफी हिस्सा। वी नो दैट मेसोपोटामिया हैज़ अ वेरी प्रॉस्परस एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी प्रॉस्परस थी इनके पास में
यूफ्रेट और टिग्रिस रिवर का जो फ्लड प्लेन था जो साउथ में क्रिएट हो रहा था, वहाँ पे एक वास्ट जो है स्ट्रेच प्लेस अवेलेबल था जहाँ पे एग्रीकल्चर होती थी, उसी के पास में सिटी लाइफ स्टार्ट। लेकिन अब उसकी अगर हमने ज्योग्राफी देखी है मेसोपोटामिया की, तो वहाँ पे इसके साउथ में जो है डेजर्ट है, नॉर्थ में स्टेपी ग्रासलैंड है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है माउंटेन्स है। ऐसी कंडीशन में रिसोर्सेज जो है मिनरल रिसोर्सेज आर वेरी फ्यू। मोस्ट पार्ट ऑफ द साउथ लाइक स्टोन फूड, अधिकतर जो पार्ट था साउथ का उसमें देखिए स्टोन जो है वो उसके लिए या ज्वेल्स वो अवेलेबल नहीं थे। द वुड ऑफ द इराकी रेड पाम एंड पॉपुलर वाज नॉट गुड इनफ फॉर कार्ड व्हील और जो डेड पाम थे जो पॉपुलर जो यहाँ पे ट्रीज थे वो किसके थे, मेनली डेड पाम के थे या पॉपुलर के थे, और ये गुड इनफ नहीं थे क्या बनाने के लिए, कार्ड्स सामानों को जो है एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना है वुड्स का सिटीज़ में, उसके लिए जो वुड है या जो कार्ड्स हमें चाहिए उसके लिए वुड जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। साथ ही साथ में कार्ड के यूज के लिए बोर्ड्स के एंड देयर वाज नो मेटल टूल वेसल्स और ऑर्नामेंट, साथ ही साथ में मेटल जो है वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। तो ऐसी कंडीशन में क्या चीज़ थी? So we can summarize that the ancient Mesopotamians could have traded their abundant textile, agriculture produce for wood, copper, tin, silver, gold, shell and various stones from Turkey and Iran। देखिए हम क्या यहाँ पे जो है समराइज में बात कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा इनके पास फूड रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर प्रॉस्परस थी, लेकिन बाकी चीज़ें कुछ भी नहीं है। इसको समराइज में हम क्या बोल सकते हैं कि मेसोपोटामियन जो है उन्होंने अपनी जो एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी, उनके पास में जो प्रोड्यूस थी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसको ट्रेड किया होगा इन एक्सचेंज ऑफ वुड, कॉपर, टीन, सिल्वर, गोल्ड, शेल एंड वेरियस स्टोन। तो कहाँ से? तुर्की और ईरान से, और अक्रॉस द गल्फ, जो पर्शियन गल्फ है उसके भी आगे। और पर्शियन गल्फ के आगे क्या चीज़ आती है हमारे सामने? पर्शियन गल्फ के आगे जो है वो हमारा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो जो है हिमालय के फुटहिल से लेके साउथ में अरेबियन सी तक जो है स्ट्रेच था, इतने बड़े सिविलाइजेशन। तो अरेबियन सी और मेसोपोटामियंस के बीच में एक और कॉन्टैक्ट कहाँ से आता है? इसके लिए These latter regions had mineral resources but much less scope for agriculture। ये जो latter regions है, तुर्की है, ईरान है, यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जो एग्रीकल्चर उसके लिए जो है बहुत कम यहाँ पे जो है रिसोर्सेज अवेलेबल थे। तो पॉसिबली ओनली व्हेन देयर वाज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इक्विप फॉर एन एक्सपेडिशन। तो इससे क्या पता चलता है कि कोई ना कोई ऐसा सोशल ऑर्गेनाइजेशन रहा होगा जिसने फॉरेन एक्सपेडिशन के लिए दूसरे जो एरिया जो वहाँ पे अपने लोगों को भेजा होगा, उनसे मालूम किया होगा कि वहाँ पे कौन सी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको एक्सचेंज करने के लिए। एंड ओनली व्हेन देयर वाज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन टू इक्विप फॉरेन एक्सपेडिशंस एंड डायरेक्ट द एक्सचेंजेस वर इनिशिएटेड बाय द पीपल ऑफ सदर्न मेसोपोटामिया। इस तरीके से जो डायरेक्ट एक्सचेंजेस हैं वो इनिशिएट किए गए थे सदर्न मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा। तो यहाँ तक देखिए हमने क्या बात की, हमने देखा कि जो मूवमेंट से गुड्स का सिटीज़ के अंदर उसमें क्या हो रहा है कि जो मेसोपोटामिया के लोग हैं वो फूड रिसोर्सेज जो हैं उसमें सेल्फ सफिशिएंट काफ़ी जो है प्रोडक्शन हो रहा है एग्रीकल्चर का। यहाँ पे एग्रीकल्चर में देखिए हमने बात की, इन्होंने कॉटन जो है उसका प्रोड्यूस कर रखा था, वीट, बार्ले इनका प्रोडक्शन हो रहा था। कॉटन जो है वो टेक्सटाइल के लिए यूज़फुल था। इनके पास में जो एबंडेंट टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थे, इनको उन्होंने उन चीज़ें जो इनके पास में नहीं थी उसके बदले में ट्रेड करना शुरू किया। और कहाँ से ट्रेड किया? तुर्की और ईरान से। क्यों? क्योंकि तुर्की और ईरान के पास में इनफ अमाउंट में मिनरल्स अवेलेबल थे, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस नहीं थी। तो इन एक्सचेंज को, ये जो एक्सचेंज हो रहा था तुर्की, ईरान और मेसोपोटामियंस के बीच में, इसके लिए एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन रहा होगा, क्योंकि उसके बिना ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। आगे हम देखें तो देखिए हम बात कर रहे थे मूवमेंट्स ऑफ गुड्स इनटू सिटीज़। जो मूवमेंट्स है, जो गुड्स हैं, उनको सिटीज़ में किस तरीके से मूव किया जाता था। तो हमने देखा कि मेसोपोटामियंस जो हैं वो एग्रीकल्चर रिसोर्सेज में फुल थे, सेल्फ सफिशिएंट थे, उनके पास में काफ़ी एग्रीकल्चर रिसोर्सेज थे, लेकिन मिनरल रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे उनके पास। उसके लिए वो अपने नियर बाई जो एरियाज थे उनके ऊपर डिपेंडेंट थे। जैसे तुर्की और ईरान से जो हैं वो कई सारे स्टोन्स जो हैं, गोल्ड, सेल, टिन, सिल्वर, ये सारी जो हैं वो बाय करते थे और गल्फ के अक्रॉस। आगे हम बात करें बिसाइड्स क्राफ्ट, ट्रेड एंड सर्विसेज। क्राफ्ट, ट्रेड एंड सर्विसेज के अलावा एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अर्बन डेवलपमेंट। देखिए कोई भी अर्बन डेवलपमेंट, कोई भी सिटी है, उसको हम कब डेवलपमेंट मानेंगे? जब वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी काफ़ी इजीली अवेलेबल हो। जो सामान है या जो ह्यूमन्स है उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करना। इफ अ पर्सन wants to move one place to another place, also he wants to move some goods within, उसके लिए जो फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है वो एक अर्बन सिटी में बेस्ट लेवल की होनी चाहिए, तब हम उसको जो एक अर्बन डेवलपमेंट में मानते हैं। इफ इट टेक्स टू मच टाइम और टू मच एनिमल फीड टू कैरी ग्रेन और चारकोल इनटू सिटीज ऑन पैक एनिमल्स और लो कार्ड, द सिटी इकोनॉमी विल नॉट बी वाइबल। देखिए अगर इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता या बहुत ज़्यादा एनिमल फीड की रिक्वायरमेंट होती,
जो अनाज है या चारकोल है उसको सिटीज़ में लेके आना एनिमल्स के पैक के ऊपर या ब्लॉक कार्ड्स के अंदर, तो सिटी इकोनॉमी जो वायबल मीन्स क्योंकि ज़्यादा उनका जो पैसा है वो किस में खर्च ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन में, उस कंडीशन में जो है इकोनॉमी के लिए वो हेल्पफुल है। द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज एवरीवेयर ओवर वाटर, हमने बात की थी सबसे चीपेस्ट मेथड कौन सा है ट्रांसपोर्टेशन का, वाटर। रिवर, boats or barges loaded with sacks of grain are propelled by the current of the river and or wind, but when animal transport goods they need to be wet। देखिए जब रिवर जो है उसके ऊपर आपको जो है सामानों को लोड करके किसी चीज़ में ले जाना है, उनको मूवमेंट कराने के लिए रिवर की जो करंट है जो फ्लो है उसके थ्रू आप रिवर से ले जा सकते हैं, विंड के थ्रू ले जा सकते हैं। लेकिन जब आपको एनिमल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना है तो एनिमल्स नीड टू बी फ्री। द कैनाल्स एंड नेचुरल चैनल्स ऑफ एंशिएंट मेसोपोटामिया वर इन फैक्ट यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट between large and small settlement। तो लार्ज और स्मॉल सेटलमेंट्स के बीच में हमने जो बात की कि डेजर्ट के अंदर आते हैं जो यूफ्रेट रिवर है, टिग्रिस रिवर है, चैनल्स में डिवाइड होता है। ये जो चैनल्स थे ये काफ़ी अच्छा जो है प्रोवाइड करवाते थे ट्रांसपोर्टेशन सेटलमेंट जो है इस दोनों के बीच में। एंड इन द अकाउंट ऑफ द सिटी ऑफ मारी लेटर इन द चैप्टर द इंपॉर्टेंस ऑफ द यूफ्रेट एज अ वर्ड रूट विल बी। और साथ ही हम जब देखिए मारी सिटी को पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में इसके ऊपर हो जाएगी वो है वैल्यू मारी सिटी जो है वहाँ पे रिवर यूफ्रेट है उसको किस तरीके से उन्होंने यूज़ किया जाता है, उसको किस तरीके से उन्होंने टॉल टेक्स्ट है वहाँ से लिया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। जो राइटिंग है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है मैथमेटिक्स में। यू कैन सी क्ले टैबलेट्स जो हैं वो मिली हैं 3200 BC की। ईच टैबलेट इज 3.5 सेंटीमीटर और लेस इन हाइट। हर एक जो टैबलेट है उसकी हाइट क्या है 3.5 सेंटीमीटर या फिर उससे कम, जिसके अंदर पिक्चर लाइक साइन है जैसे ये ऑक्स, रे, फिश, इस तरीके की जो साइंस है वो इनके ऊपर बने हुए इन क्ले टैबलेट्स पे। मीन्स इन लोगों ने जो राइटिंग है उसको डेवलप किया होगा, तभी जो है इन्होंने ये सिस्टम जो है ये ग्रेन्स की सारी चीज़ें हैं वो डेवलप की होगी। एक यूनिफॉर्म स्टाइल जो है वो साइन हम देख सकते हैं नेक्स्ट पिक्चर में। तो आगे हम बात करें इसमें ऑल सॉर्ट ऑफ सोसाइटीज हैव लैंग्वेजेस इन विच सर्टेन स्पोकन साउंड्स कन्वे सर्टेन मीनिंग्स। हर एक जो सोसाइटी है उसके अंदर कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जहाँ पे कुछ जो स्पोकन साउंड है वो कुछ मीनिंग जो है उसको कन्वे करते हैं, सर्टेन मीनिंग जो है वो उनसे कन्वे की जाती है। दिस इज़ अ वर्बल कम्युनिकेशन। ये जो है वर्बल कम्युनिकेशन होता है। राइटिंग टू इज़ वर्बल कम्युनिकेशन बट इन ए डिफरेंट वे। लेकिन राइटिंग जो है वो भी एक वर्बल कम्युनिकेशन होता है लेकिन एक डिफरेंट वे में। व्हेन वी टॉक अबाउट राइटिंग और स्क्रिप्ट वी मीन दैट स्पोकन साउंड्स आर रिप्रेजेंटेड इनटू विजिबल साइन। जब भी हम राइटिंग की बात करते हैं या स्क्रिप्ट की बात करते हैं इसका मीन्स क्या है कि जो स्पोकन साउंड्स जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं उनको एक विजिबल साइन के रूप में रिप्रेजेंट किया गया। देखिए हम बात कर रहे हैं द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है, राइटिंग एंड सिटी लाइफ ऑफ मेसोपोटामिया। जो मेसोपोटामिया है उसकी राइटिंग और सिटी लाइफ के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसमें हम राइटिंग जो है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में। वी हैव बीन डिस्कसिंग दैट। टू नो दैट हाउ डज द राइटिंग हैज़ डेवलप इन मेसोपोटामिया वी हैव स्टार्टेड दैट all societies have languages in which certain spoken sounds convey certain meanings. This is verbal communication. In the spoken sounds are verbal communication and writing is also verbal communication. But until we need a script or we have to write it to mean the spoken words we have said, जो spoken words हम यूज़ करते हैं, जो sounds हम यूज़ कर सकते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जिन विजिबल साइन को यूज़ करते हैं हम उसको कहा जाता है राइटिंग। The first Mesopotamian tablet written around 3200 BC contained picture-like signs and number। जो फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट थी, टैबलेट का मीन्स क्या है, एक इस तरीके का शेप का क्ले का बना हुआ शेप। ये जो है ना इस तरीके की शेप की एक क्ले शेप जिसकी लेस जो है हाइट जो है वो क्या है 3.5 सेंटीमीटर लेस, यानी 3.5 सेंटीमीटर जो है इसकी हाइट है उसका ये बना हुआ। उसके ऊपर ऐसे इमेजेस जो है वो बने हुए पर्टिकुलर मीनिंग जो है उसको शो करते हैं। क्ले टैबलेट, मिट्टी की बनी हुई टैबलेट। तो फर्स्ट टैबलेट जो हमें मिली है वो अराउंड 3200 BC लिखी गई थी मेसोपोटामिया में। कंटेन पिक्चर लाइक साइंस एंड नंबर्स। दीज वर अबाउट 5000 लिस्ट ऑफ ऑक्सीन, फिश, ब्रेड, लोव्स। ये जो है देखिए इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 5000 के आसपास जो लिस्ट है ऑक्सीन की, फिश की, ब्रेड की, लोव्स की। लिस्ट ऑफ गुड्स दैट वर ब्रॉट इनटू और डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द टेम्पल्स ऑफ उरू, a city in the south।
ये जो यहाँ पे 5000 के आसपास की जो लिस्ट जिसमें ऑक्सीजन, फिश, ब्रेड, लॉस, ये सारी चीज़ें मेंशन है, ये शो करता है कि वहाँ पे जो गुड्स है वो सिटीज़ में लाए गए थे या डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे उर्ग के अंदर। क्लियरली राइटिंग बिगेन व्हेन सोसाइटी नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन। राइटिंग जो है उसकी शुरुआत कब हुई? जब सोसाइटी जो है उसको रिकॉर्ड्स रखने पड़े, बिकॉज इन सिटी लाइफ ट्रांजेक्शन अकर्ड एट डिफरेंट टाइम एंड इन्वॉल्व मेनी पीपल एंड वेराइटी ऑफ गुड्स। क्योंकि देखिए, जो हम बात करते हैं किसी सिटी लाइफ की, तो सिटी लाइफ के अंदर हमने जैसा देखा कि ब्रॉन्ज टूल मेकर जो है वो अलग पर्सन पे डिपेंडेंट है मेटल्स के लिए, सील कार्वर्ड जो है वो ब्रॉन्ज टूल मेकर पे डिपेंडेंट है, स्टोन ट्रेडर पे डिपेंडेंट है, सभी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। ऐसी कंडीशन में जो ट्रेड हो रहा है उस ट्रेड का एक रिकॉर्ड रखने के लिए, जो ट्रांजेक्शन हो रहे लोगों के बीच में उसका रिकॉर्ड करने के लिए कई सारे लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, वेराइटी ऑफ गुड्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। इन सब का रिकॉर्ड्स रखने के लिए जो राइटिंग है वो यहाँ पे डेवलप हुई है। आगे हम बात करें, furthermore we will discuss, this is a image of a clay। ये जो है क्ले टैबलेट जो है जो रिटर्न की गई है दोनों साइड में यूनिफॉर्म लैंग्वेज में, उसका इमेज है मेसोपोटामियंस wrote on a clay on tablets of clay, scribe would wet clay and paint it into a size he could hold comfortably in one hand, he would carefully smoothen the surface। देखिए इसमें क्या चीज़ है, स्क्राइब किसके लिए यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे? उस पर्सन के लिए जो कि लिखने का काम करता था इन टैबलेट्स के ऊपर। जैसे हम बात करते हैं प्रेजेंट डे में क्लर्क्स जो वर्क करते हैं लिखने का, वही वर्क जो यहाँ पे स्क्राइब करता था, जो सबसे पहले क्ले जो है उसको वेट करता था, उसके बाद में उसको एक साइज में जो है वो रखता था, जो जिस साइज में वो उसे पकड़ सके, हाथों में कंफर्टेबली ले सके, और उसके बाद में वो इसके ऊपर केयरफुली जो है इसकी सरफेस के ऊपर स्मूथ करने के बाद में विद शार्प एंड ऑफ अ रीड, एक रीड की मदद से यानी एक तीखी नोक की मदद से जो है वो इसके ऊपर ही वुड प्रेस विद शिफ्ट साइंस टू द स्मूथ सरफेस वाइल इट वाज ऑलमोस्ट वुड। ये गीली होती, सूखी नहीं होती थी, पूरी तरीके से गीली रहती थी, उसके ऊपर जो है वो रीड की मदद से जो है इसके ऊपर लिखता था कुछ राइटिंग के अंदर, और वंस इसके ऊपर वो राइटिंग कंप्लीट करता वो इसको जो है सन ड्राइड करता था, और सन ड्राइड करने के बाद में ये जो क्ले टैबलेट है ये हार्डन हो जाती थी और ऑलमोस्ट इनडिस्ट्रक्टेबल थी एज पोट्री, जैसे पोट्री होती है हमारी मिट्टी के बर्तन उसी तरीके से। क्यूनिफॉर्म की बात करें, क्यूनिफॉर्म क्या होता है? क्यूनिफॉर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूनियस मीनिंग वेज एंड फॉर्म मीनिंग शेप। तो क्यूनिफॉर्म जो है हमने बात की कि भाई इन्होंने जो क्यूनिफॉर्म साइंस बनाया, क्यूनिफॉर्म कहाँ से आया? लैटिन लैंग्वेज के वर्ड से आया है, क्यूनियस और फॉर्मा से। क्यूनियस का मीन होता है वेज और फॉर्मा का मीन होता है शेप, यानी शेप को वेज करना, शेप्स बनाना। आगे हम बात करें, when a written record of say the delivery of pieces of metal had ceased to be relevant, the tablet was thrown away। जब भी कोई रिटर्न रिकॉर्ड, जैसे कोई डिलीवरी है पीसेस ऑफ मेटल की, वो सीज हो जाती थी या पहुंच जाती थी, जो टैबलेट है उसको फेंक दिया जाता था। और वंस द सरफेस ड्राइड साइंस कुड नॉट बी प्रेस ऑन टू अ टैबलेट। एक बार ये सूख जाती थी तो उसके ऊपर कोई भी नया साइन जो है वो नहीं बनाया जा सकता। सो ईच ट्रांजेक्शंस हाउएवर माइनर रिक्वायर अ सेपरेट रिटर्न टैबलेट। देखिए इससे क्या प्रूव हो रहा है, क्योंकि हम जब बात करते हैं ना कि हमारे पास में एक वास्ट अमाउंट ऑफ लिटरेरी सोर्स अवेलेबल है इन केस ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे जो क्ले टैबलेट है उसकी एक बार सूखने के बाद में उसको दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता था। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे एक ही बार जो है उसको यूज़ करते, तो कोई भी माइनर से माइनर भी अगर डिटेल मेंशन करनी है तो उसके लिए एक नया सेपरेट जो टैबलेट है उसकी रिक्वायरमेंट हमें होती थी। दिस इज वाई टैबलेट्स अकर बाय द हंड्रेड्स ऑफ मेसोपोटामियन साइट्स, हंड्रेड्स ऑफ मेसोपोटामियन साइट्स से जो इसी तरह की टैबलेट्स हमें मिली है। दिस इज वाई टैबलेट्स अकर बाय द हंड्रेड्स ऑफ मेसोपोटामियन साइट्स एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस वेल्थ ऑफ सोर्सेज that we know so much about the Mesopotamian that we do not know about contemporary India। Contemporary India means जब Mesopotamian civilization डेवलप हो रहा था, Mesopotamia उसी वक्त इंडिया में Indus Valley civilization डेवलप था, but due to the unclassified script of Indus Valley civilization, क्योंकि Indus Valley civilization की जो राइटिंग है उसको हम ट्रांसलेट नहीं कर पाए, हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। वही Mesopotamian के केस में हमारे पास में abundance है। By 2600 BC or so, the letters became uniform and the language was Sumerian। 2600 BC के आसपास जो letters से uniform बन गए, language जो है वो Sumerian थी। Writing was now used not only for keeping input but also for making dictionaries, giving legal validity to land transfer, narrating the deeds of kings and announcing the change the king had made in the customary laws of the land। देखिए जो ये थी ये टैबलेट स्टार्ट में सिर्फ रिकॉर्ड जो है उसको मेंशन करने के लिए रखी जा रही थी, लेकिन अब इनसे जो है इनका यूज जो है वो बढ़ गया था। उनकी डिक्शनरीज बनाई जा रही थी,
लीगल वैलिडिटी देने के लिए किसी लैंड ट्रांसफर को जमीन जो है ट्रांसफर हो गई उसके लिए किंग जो है उसकी नीड्स के लिए इनको यूज किया जाता है। सुमेरियन द अर्लीस्ट नॉन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया वाज बेसिकली रिप्लेस आफ्टर 2400 BC। तो सुमेरियन की सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, अर्लीस्ट लैंग्वेज है मेसोपोटामिया की, 2400 BC के आसपास डिक्री हो जाती है, रिप्लेस कर ली जाती है अकेडियन लैंग्वेज के द्वारा। एंड क्यूनिफॉर्म राइटिंग इन द अकेडियन लैंग्वेज कंटिन्यूड इन यूज अंटिल द फर्स्ट सेंचुरी, दैट इज मोर देन 2000। और जो ये अकेडियन लैंग्वेज में जो क्यूनिफॉर्म राइटिंग है ये 2000 इयर्स तक जो है यानी फर्स्ट सेंचुरी तक जो है लगभग कंटिन्यूटी के साथ में रहती है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें द सिस्टम ऑफ राइटिंग, जो राइटिंग जो है उसके सिस्टम की बात करें। द साउंड दैट ए यूनिफॉर्म साइन रिप्रेजेंटेड वाज नॉट अ सिंगल कॉन्सोनेंट और जो साइंस जो साउंड एक यूनिफॉर्म साइन रिप्रेजेंट करते हैं वो कोई सिंगल कॉन्सोनेंट या वोवल साउंड का सच एज एम और ए इन द इंग्लिश एंड बट सिलेबल्स, ये सिलेबल्स थे यानी पूरा का पूरा वर्ड जैसे से टू ला टू इन। Thus the science that the Mesopotamian scribe had to learn ran into 100। तो इसका मतलब क्या है कि जो जैसे हम बात करते हैं तो इंग्लिश के अंदर 26 अल्फाबेट है, we know about consonant and vowel, कौन सा consonant है कौन सा vowel है। बट इन केस ऑफ Mesopotamian civilization हम बात करते हैं वहाँ की राइटिंग किसकी थी, तो वहाँ पे जो है सिलेबस थे। सिलेबस में पूरा का पूरा वर्ड याद करना होता किसी भी मीनिंग को जो है बताने के लिए। इन दैट केस जो स्क्राइब होते जो पर्सन जो राइटिंग का काम करते थे क्लियर राइटिंग क्लियर टैबलेट पे राइटिंग का, उनको हंड्रेड्स ऑफ इस तरीके के जो वर्ड्स है वो याद रखने होते थे। एंड ही हैड टू बी एबल टू हैंडल अ वेट टैबलेट एंड गेट इट रिटन बिफोर राइट। और साथ ही साथ में उसको इतना फास्ट होना पड़ता था कि वो उस टैबलेट को हैंडल कर सके और उसके सूखने से पहले ही उसको जो है राइट कर सके। सो राइटिंग वाज ए स्किल क्राफ्ट बट मोर इम्पोर्टेंट इट वाज एन एनॉर्मस इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट कन्वेइंग इन विजुअल फॉर्म द सिस्टम ऑफ साउंड ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो राइटिंग के लिए हम देख चुके हैं टैबलेट जो है उसके सूखने से पहले उसके ऊपर लिखना है, काफ़ी सारे सिलेबस को याद रखना है आपको। तो इसलिए ये जो है एक स्किल था, क्राफ्ट था, जिसके लिए इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो हम जो है नेक्स्ट टॉपिक्स जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो हम अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फॉर टुडे इट्स इनफ, हैव अ नाइस डे।